वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे IS कोड 1200। मेरी प्रेजेंटेशन बेस्ड है SPPU सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन प्रोफाइल। So this is the SPPU syllabus. So IS code 1200, it comes under unit 3. So these are the basic outline of my presentation. Firstly, I introduce IS 1200. The code name is Method of Measurement of Building and Civil Engineering Works. I will talk about some part and other relevant code with the IS 1200, and then after that I will explain few parts because the measure of the most of them parts are relevant to the civil engineering work, so I will not cover in this section. So I will discuss about few points, not completely IS code. So the first I will discuss about earthwork, then concrete work, then brick, then stone masonry, all the basic construction regarding the building technology, building regarding the architecture. Then the part 5 is the form work, and the 8 the steel work and iron work, then roof covering, ceiling and lining, then floor finishes, then plastering and pointing, then whitewashing, color washing, distempering, and the end with the references. बिफोर दिस आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस कि इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स बनते हैं इस कोड से। द फर्स्ट वन इज द जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटा है एक्सकेवेशन के अकॉर्डिंग IS 1200, वो एक शॉर्ट नोट बनता है। देन सेकंड वन इज द ट्रायल पिट डेटा, एंड द इम्पॉर्टेंट इज द लिफ्ट एंड लीड्स। दैट इज द इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे शॉर्ट नोट्स के प्रॉब्लम्स में आते हैं। सो ओके, सो दिस इज द IS कोड लिस्ट, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन है कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 28 तक कौन सा पार्ट किस चीज को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इन कोड ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो जस्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं। सो द वन इज just hold on a second. So one is for earthwork, second is for concrete work, third is a brick work, fourth for stone masonry, fifth for form work, sixth is a refractory work। तो refractory work मैं बता दूं, जनरली जो हम लोग किल बॉयलर जो ब्रिक वर्क से बनाते हैं वो इसके अंडर में आता है। 7 is relevant to hardware, 8th is steel work and iron work. In this section they are talking about majorly of steel sections or RSJ section or beams. So 9th is the roof covering, 10th is the ceiling and lining, 11th is the floor finishes, 12th relevant to the plastering and pointing, 13th is the whitewashing, color washing, distempering, 4th is the glazing section, 5th painting, polishing and varnishing, 16 is relevant to the water and sewer lines, 17 road work including airfield pavement, 18 demolition and dismantling, 19 is relevant to water supply, plumbing and drainage, 20 is relevant to laying of gas and oil pipelines, 21 is the woodwork and joinery, 22 is about material, 23 is the piling, 24 is the well foundation, 25 is the tunneling, 26 is the acid register lining, 27 is the earthwork done by mechanical appliances, 28 by sound installation। अगर आपको एस्टिमेशन में किसी मटेरियल को किस यूनिट में मेजर करना है, तो अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी रेफरेंस, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली चेक 120022 नंबर पार्ट इन द मटेरियल सेक्शन, एक्सप्लेन एवरीथिंग कि किस चीज को हम किस मटेरियल को किस यूनिट में मेजर करते हैं। ओके, and these two codes are with relevant code with the IS SP 120। how just I'll tell you कि IS code 3861, the name is the method of measurement of plinth, carpet and rentable area of building। एक्चुअली क्या होता है ना, प्रैक्टिस हम लोग प्लिंथ और इन सब चीजों के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि क्या बिल्टअप एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, कौन से एरिया को हम प्लिंथ में कंसीडर करते हैं, किसको कारपेट एरिया में कंसीडर करते हैं और किस एरिया को कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं करते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी रेंट पे होती है तो किस किस एरिया को हम लोग रेंटेबल एरिया में कंसीडर करते नहीं करते हैं। तो इसका जो क्लियर क्लासिफिकेशन है वो IS 3861 में। एंड इन द IS कोड SP 27 यानी कि स्पेशल पब्लिकेशन 27, जो ये कोड हैंडबुक ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क। सो इसमें 1 से लेकर के 28 तक जितने भी हमारे IS कोड थे वो पार्ट ऑलरेडी SP 27 में कंबाइंडली अवेलेबल है। Okay, so we start from the part 1, earthwork to classification. So
इसमें क्या है, जैसे हम लोग जनरली जो अर्थवर्क का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग होता है। जब हम सॉइल का चैप्टर पढ़ते हैं तो वो हम सॉइल के कॉम्बिनेशन में लोमी है, क्या है, कितने परसेंट सिल्ट है, क्ले है, सिल्का है, उसके कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। फिर अगर अदर में कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं तो लाइक किस टाइप की है अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर की, वो ब्लैक कॉटन सॉइल है या कैसी है, रॉकी है, उसके कॉम्बिनेशन। बट जब हम अर्थवर्क एक्सकवेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो देयर इज द मेजरली 6 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो डिफाइन किया है। द फर्स्ट वन इज द लूज सॉइल। तो लूज सॉइल और हार्ड डेंस सॉइल, इन दोनों में केवल एक डिफरेंस है कि दोनों में ही सॉइल के पार्टिकल हैं, बट लूज सॉइल को हमें छोटे मोटे टूल्स के थ्रू भी हम डिगिंग कर सकते हैं। बट हार्ड डेंस सॉइल के लिए हमें थोड़े बहुत हायर और मतलब उनकी जो बॉन्डिंग होती है सॉइल की वो ज्यादातर थोड़े एक हायर स्ट्रेंथ के जो रोड जो टूल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। देन थर्ड वन इज द मड। सो इसमें क्या होता है कि जो सॉइल में हम लगभग एक वाटर का कंटेंट परसेंटेज ज्यादा हो, जिसको हम अगर हम लोकल लैंग्वेज बोले तो कीचड़ या फिर वैसा दलदल ऐसी टाइप की जो सॉइल होती है हम उसको मड में कंसीडर करते हैं। देन दी सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड उसको क्या होता है कि उसमें हम लोग छोटे छोटे पत्थर उसमें रॉक बाउल्डर साइज के जिनको हम किसी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उनको निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक बेस्ड। देन फिफ्थ वन इज द हार्ड रॉक। तो इसमें क्या होता है, हमको वो पत्थर के साइजेस इतने बड़े होते हैं जिनके लिए हमको ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, तो उस केसेस के लिए उनको कैटेगरी हार्ड रॉक है। एंड देन सेम कैटेगरी में ऐसा भी होता है कि वहां पे ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड होती है, तो उस केसेस में हम लोग डी मेथड अप्लाइड करते हैं सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड, उसको हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी उसके थ्रू ही तोड़ते हैं। हम वहां पे ब्लास्टिंग जो है वो नहीं करते, चिजलिंग वेजिंग अदर जितने भी मेथड हो सकते हैं उनसे करते हैं, बट हम लोग वहां पे ब्लास्टिंग नहीं करते। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेशन। अब बात आती है जो एक्सकेवेशन हो गया, तो उसको हम लोग जो मेजरमेंट है या वो तो हम किस उससे देखते हैं एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क और रॉक कटिंग को। तो उसमें जो फर्स्ट मेथड होता है कि जो हमारी सॉइल है वो कैसी है, तो अगर उसमें ट्रेंचेस इजीली हो जा रहे हैं जिसमें कोई स्लॉप अंडुलेटेड नहीं है, एकदम फ्लैट लैंड है, सो दैट इज द फर्स्ट मेथड। तो उसमें जो जनरली हम लोग सॉइल को बिना डिस्ट्रक्शन करके बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डेड मैन और टेलटेल्स भी कहते हैं। I don't know why this name they chosen. Actually, this name the nomenclature comes from the uh, archaeological. So I think we say it's a dead man on telltales. Otherwise, I don't know what the reason behind of this name. Uh, तो फर्स्ट जो होता है वो हमारा सॉइल के जिसमें हम इजीली ट्रेंचेस ओपन कर सकें। दूसरा क्या होता है, जिसमें सॉइल का जो ग्राउंड है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, साइट को थोड़ा क्लियर करना पड़ता है, एग्जैक्ट बराबर करना पड़ता है। देन उसके बाद हम उसको डिगिंग और ये कटिंग प्रोसेस करते हैं। सो दैट द मेथड कॉल्ड इज द सेकेंड वन, जिसमें ग्राउंड अंडुलेटेड में होता है। तो उसमें जो थर्ड वाले में क्या होता है कि जो हमारे इसमें रॉक के जो हार्ड रॉक होता है वो उसमें सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड जो हमें पड़ा था वो उसमें मिक्स होते हैं। तो उस केसेस में हम फर्स्टली क्या करते हैं, फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट मेथड है कि मट्टी को हम लोग एक्सकवेट करते हैं सॉफ्टली, उसको हम लोग थ्रू द some few tools, तो फर्स्टली तो वो करते हैं एंड देन सेकंड मेथड भी इस पे अप्लाई करते हैं। एंड देन इसमें एक ये रूल है कि जितने भी हमारे सॉइल और रॉक के पार्टिकल मिलते हैं तो उनको हम लोग सेग्रीगेटेड करके स्टैक करते हैं उनके क्वांटिटी को, कि जितने हमारी सॉइल्स है वो अलग और जो हार्ड रॉक है उनको स्टैक करके एक तरफ रखते हैं और उनको क्वांटिटी को। Then another one is the when hard dense soil and soft disintegrated hard rock are mixed, मतलब जहाँ पे हमारे बड़े पत्थर बॉल्डर साइज बड़े हैं, तो एक सेकंड उसमें हम ये A B C ऑल थ्री मेथड्स भी आर अप्लाइंग, उसमें हार्ड सॉइल को रिमूव करते हैं, देन पत्थरों को कलेक्ट करते हैं, देन बोथ वी आर कैलकुलेटिंग द सेपरेटली। ओके, देन लास्ट वन जहाँ पे हमारी सॉफ्ट सॉइल हो, लूज सॉइल हो, हार्ड डेंस सॉइल हो, सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स हो, हार्ड रॉक्स में, तो उस केसेस में भी हम फर्स्ट जो दो मेथड हैं उनको ही अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट और डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स का, तो जिसमें कॉम्बिनेशन है कि सॉफ्ट सॉइल लूज सॉइल, सो उसी के बेसिस पे हमारे 5 आई थिंक क्लासिफिकेशन है जो कि हमारे एक्सकवेशन में यूज होते हैं। Okay, then there the another term is called the lead.
तो लीड और लिफ्ट बेसिकली क्या होता है, तो लीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एस्टिमेशन। तो लाइक जैसे कि हम कहीं एक्सकेवेशन करते हैं, तो एक्सकेवेशन करने के लिए उसके बाद उसको फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग करने के लिए अगर हमको कोई मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है, तो वो मटेरियल हम कितनी दूरी किस डिस्टेंस से ला रहे हैं, दैट मस्ट बी मेंशन इन लीड इन द एस्टिमेशन। तो जैसे कि एक ऑप्शन मैं बताता हूँ कि अगर हमें किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो जो कि हम अपनी साइट से लमसम 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर से ला रहे हैं, और दूसरे में अगर हम किसी में 10 किलोमीटर से ला रहे हैं, तो जो हमारा खर्चा होता है ऑब्वियसली है कि जो कम डिस्टेंस से लाएंगे तो ऑब्वियसली है कि वो बचेगा। तो उसको हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर सैंड का कोई 1 मीटर क्यूबिक का यूनिट का प्राइस 115 रुपीज था, 115 रुपीज, और अगर हमको लीड दी गई है कि हमको जो वो मटेरियल वो 6 किलोमीटर के अंदर से लाना है, तो और उसका जो प्राइस है रेट डिसाइड किया, दैट इज द 4 फॉर पर किलोमीटर, हैंडलिंग चार्जेस इज ऑफ 14, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर हम उस सैंड का प्राइस पूरा कंप्लीटली देखें, तो वो हमको प्राइस पड़ा 115 रुपीज का कंप्लीट पहले फर्स्ट सेक्शन। देन हमको चूंकि लीड था 6 और रेट था 4, तो वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट्स कॉल्ड 24, and then the handling charges we are adding, so then the actual cost is the sand is 153 rupees, but the cost of the sand is the 115 rupees। तो लीड जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीड फ्रॉम द साइड। वर्टिकल डिस्टेंस जो हम कहीं डिग या कहीं कोई चीज हमेशा ग्राउंड लेवल से मेजर करते हैं। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि जब भी हम लीड को मेजर करते हैं, तो अगर वो लीड हमारी किसी साइड से 250 मीटर के अंदर है 250 के, तो हम लीड को काउंट 50-50 मीटर के इंटरवल पे करते हैं। अगर वो 250 और 500 के बीच में है, तो हम जो है वो 50 सॉरी 50 के अंडर में करते हैं, टू डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 250, एंड देन 250 and 500 shall be measured as separate item, okay, separately करते हैं। then lead beyond 500 meter and shall be measured in a unit of 500 मीटर, ओके अगर 500 मीटर के में है तो फिर हम उसको 500 मीटर के बेसिस पे शेयर करते हैं। अगर वो 1500 मीटर से ज्यादा है एंड 5 किलोमीटर से कम है, देन हम उसको 1000 मीटर के वो सेग्रीगेटेड पार्ट में हम उसको मेजर करेंगे। अगर उसका लीड जो है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तब उस केसेस में हम 1 किलोमीटर और हाफ किलोमीटर के कॉन्सेप्ट में हम जो है लीड को करेंगे। ठीक है। लिफ्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें कहीं से कोई साइड से कितना ऊंचा उठाना है, तो इट्स कॉल्ड अ लिफ्ट। तो जो लिफ्ट के चार्जेस हैं, सो इसका भी हमारा यूज होता है कि जब हमारे हाई राइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वो परमानेंटली उठाए जाते हैं, कोई भी मटेरियल ऊपर पहुंचाना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग लिफ्ट, जिसमें लिफ्ट का भी प्राइस ऐड होता है तो हर फ्लोर के लिए, तो उसको हम लोग जनरली 1.2 मीटर के कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट करते हैं, मेजर्ड इन सॉरी 5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर के कॉन्सेप्ट में इसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर प्रैक्टिकली हम इसको फ्लोर वाइज भी कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए जो डेफिनेशन होती है, तो लीड जो होती है एक एवरेज डिस्टेंस होती है किसी दो सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की, और वर्टिकल जो डिस्टेंस होती है हमारी दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस की, दैट इज कॉल्ड द लिफ्ट। So horizontal distance is called the lead and vertical distance is called the lift. ओके, देन अनदर टर्म इज द ट्रायल पिट और टेस्ट पिट। ये क्या होता है, जब हम कोई साइट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले समझने के लिए कि वो साइट कैसी है, तो हम एक कहीं पे भी इस पोर्शन पे एक डिग करते हैं, पिट खोदते हैं। वो पिट का जो अंदर डेप्थ गहराई होता है वो नियर अबाउट 1 to 4 मीटर के बीच में होता है। सो फर्स्ट थिंग, हम उस पिट को ट्रायल पिट और टेस्ट पिट बोलते हैं। वो पिट का हम स्टडी करने के लिए होता है, बेसिकली सॉइल सर्वे, वाटर टेबल एंड जोलॉजिकल स्टडी करने के लिए होता है। इसमें एक और भी चीज ध्यान रखनी है, अगर हम डिग को 1.2 मीटर से नीचे कर रहे हैं और उसमें कोई ह्यूमन पर्सन उतर रहा है, तो ये मस्ट भी देखना पड़ता है कि जो स्ट्रक्चर है उसका, जो सॉइल का, वो सेफ है कि नहीं, देखने के लिए, कि ऐसा ना हो कि वो पर्सन जो है उसमें कोई फेसिंग करना पड़ जाए एक्सीडेंटल इशूज, कोलैप्स होने के चांसेस ना हो।
नेक्स्ट वन इज द कंक्रीट वर्क। तो बेसिकली लाइम कंक्रीट और जो मड कंक्रीट होता है इसको हम लोग डायरेक्टली क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर हम आरसीसी की बात करें, पीसीसी की बात करें, तो जो जो हम एलिमेंट बिल्डिंग के कंपोनेंट यूज करते हैं इन आरसीसी फॉर्मेट और पीसीसी फॉर्मेट, तो वो किस मेजरिंग यूनिट में नापे जाएंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे अगर मैं बात करूँ वॉल पैनलिंग और रूफ स्लैब की, उनको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, बीम यूनिट को हम रनिंग मीटर और नंबर्स में काउंटिंग करेंगे, चैनल को सेम, स्ट्रिंग लेसिंग कोर्सेज को भी सेम, कर्व एजिंग, सॉलिड ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, हॉलो ब्लॉक वर्क, curve edging तक in running meter and number, and solid block work, hollow block work, lightweight partition नहीं सॉरी hollow block work तक हम लोग क्यूबिक मीटर और स्क्वायर मीटर, बट हमको थिकनेस स्टेट करनी पड़ेगी। देन लाइटवेट पार्टीशन स्क्वायर मीटर स्टेटिंग द थिकनेस, डोर विंडो फ्रेम को रनिंग मीटर और स्टेटिंग द साइज, वेफलिंग को रनिंग मीटर नंबर, जाली को स्क्वायर मीटर और उसकी ओपनिंग फील्ड की क्या स्टेटिंग थिकनेस है वो देखनी पड़ेगी। फेंसिंग पॉइंट को नंबर्स में, क्यूबिक मीटर्स में, वाटर टैंक को नंबर में। देन अदर वन इज द ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क में जो हम मेजरमेंट लेंगे फर्स्टली वो क्यूबिक मीटर में ही होगा, बट इसमें जो हमारी जो थिकनेस है उसको हम लोग जब सेलेक्ट करेंगे तो वो थिकनेस कितनी लेंगे ये इसमें मेंशन है। अगर वॉल 1 ब्रिक थिक है तो हम जो है उसको अलग मेजर सेपरेट करेंगे। अगर वॉल 1 ब्रिक थिक से ज्यादा है एंड 3 ब्रिक से कम है तब उसमें हमारे दो केसेस आते हैं। जब हम ब्रिक्स की वॉल को उसकी थिकनेस को नापेंगे, अगर हमने कोई आर्किटेक्चरल एलिमेंट ऐड किया है तो अगर उसमें आफ्टर द वो एडिंग लेयर कुछ हमारा वो आगे 1/4 ब्रिक्स के अप टू तक आती है डायमेंशन, तो हम जो उस ब्रिक वॉल की थिकनेस की एक्चुअल मेजरमेंट है हम उसको कंसीडर करेंगे। बट इन द केस जो हमारा अदर आर्किटेक्चर एलिमेंट जो हमने ब्रिक की जाली या कुछ एक्स्ट्रा ब्रिक ऐड किए हैं आगे की तरफ, वो 1/4 डायमेंशन ब्रिक के से आगे निकल गई, तब हम उसको फुल हाफ ब्रिक के थिकनेस के बराबर कंसीडर करेंगे। एंड अबव द 3 ब्रिक्स जो भी थिकनेस ऑफ द वॉल होगी मेजर करने पे हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ये 3 केसेस हैं, 1, 1 3 के बीच में एंड अबव 3। देन पिलर और कॉलम की बात करें तो हम ऑब्वियसली उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे, बट शुड बी मेंशन इट्स अ शेप रेक्टेंगुलर है, कर्व्ड है या किस टाइप का है। देन अदर वन, अगर हम कोई ब्रिक वॉल सर्कुलर शेप्स में है तो अगर वो सर्कुलर शेप में 6 मीटर के रेडियस से कम है तो हम उसके डाटा क्वांटिटी को हम अलग मेजर करेंगे और जिसका 6 मीटर से ज्यादा है उसको अलग करेंगे। तो फर्स्टली हमको सर्कुलर ब्रिक वॉल का अलग करना है। अगर उसमें भी हमको 2 क्लासिफिकेशन करने हैं, अगर 6 मीटर से कम है तो उनका ब्रिक वर्क और वेस्टेज अलग अलग कैलकुलेट करके करेंगे, और जो 6 मीटर से ज्यादा है उनका अलग करेंगे। देन हनीकॉम्ब ब्रिक जो वॉलिंग है उसके लिए हम उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, उसमें हम उसकी ओपनिंग को हम डिडक्शन नहीं करेंगे। कैविटी वॉल के लिए हम कैविटी को स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, प्लस उसमें क्या टाई जो हम मेंबर यूज होता है वो कितने स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पे कितना आ रहा है, उसका मटेरियल क्या है, शेप, साइज, वो सब भी हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। रेनफोर्स ब्रिक वर्क की बात करें तो उसका हम मेजरमेंट सेपरेटली करेंगे, हम नॉर्मल ब्रिक वर्क के साथ उसको मर्ज नहीं करेंगे। आर्च वॉल्ट और स्टेयर केसेस की बात करें तो स्पैन अप टू 2 मीटर के लिए अलग करेंगे, और अगर 2 मीटर से स्पैन के लिए ज्यादा हो रहा है तो हम उसका ब्रिक वर्क अलग करेंगे। देन डैम्प प्रूफ कोर्स अगेन स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटिंग थिकनेस। देन कॉर्बेल स्ट्रिंग कोर्स, एप्रन, फ्रीज, सील, कॉर्निस, ड्रिप कोर्स, ओवरसेलिंग कोर्स एंड अदर प्रोजेक्शन सिस्टम जितने भी हमारे प्रोजेक्शन हैं इन सबको हम रनिंग मीटर में कंसीडर करेंगे स्टेटिंग डेप्थ एंड विड्थ ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एप्रन्स। तो एप्रन बेसिकली क्या होता है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वो किचन एप्रन कि बिल्डिंग को ग्राउंड से प्रोटेक्शन बचाने के लिए सम इन केस ऑफ रेन, ब्लॉगिंग और वाटर रेन प्रॉब्लम रिलेवेंट और टर्माइट रिलेवेंट, तो हम लोग एक कंक्रीट का एक प्लेटफॉर्म चारों तरफ क्रिएट करते हैं, तो उस चीज को ही हम लोग कंस्ट्रक्शन के टर्म में एप्रन बोलते हैं। देन अनदर लास्ट पॉइंट इज इन द ब्रिक वर्क, जो हमारा टूथिंग होता है, जब हम किसी ओल्ड वर्क से न्यू वर्क को ज्वाइनिंग करने के लिए एक ब्रिक्स वॉल को जब हम छोड़ते हैं और दो एक स्टैगर जैसा अप डाउन ब्रिक को जो है कट जैसा डिटेल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द टूथिंग। तो जब हम पुराने किसी वॉल से नए वर्क को कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल का वर्टिकल डायमेंशन में, उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं।
देन स्टोन मेसनरी की बात करें तो सारी की सारी स्टोन मेसनरी हमारी क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट की जाती है वॉल, लेकिन उन वॉल के जो फेस वर्क है, जो उनके ऊपर पॉइंटिंग और ये सब चीजें करते हैं, वो फेस वर्क वाली जितनी भी चीजें उनको हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे वॉल में। देन कॉलम की बात करें तो ऑब्वियसली है कि हम क्यूबिक मीटर में करेंगे और उसके जो शेप्स होंगे उसको मस्ट बी मेंशन की रेक्टेंगुलर और कर्व्ड। ओके, जब हम स्टोन वर्क में आर्चेस की बात करते हैं तो 2 मीटर तक के स्पैन के आर्चेस को अलग कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेशन में, 2 मीटर के बाद के ज्यादा अलग। सेम सेल स्टेप स्ट्रिंग और कॉर्निश कॉलम कैप स्कोपिंग सबको हम क्यूबिक मीटर में ही करेंगे। इवन किसी भी टाइप की जो ड्रेसिंग है वो स्क्वायर मीटर में ही हम लोग उसको मेजर करेंगे। Part 5 formwork and steel work. So basically formwork में there are lots of point but I have mentioned only one thing कि formwork को जो भी होगा वो हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करेंगे। ठीक है, वो जिस सरफेस को कांटेक्ट में आ रही है हमारे कंक्रीट की कास्टिंग के लिए या फिर कहीं पे भी कास्टिंग के लिए, तो वो सारी सरफेसेस को मिला करके वो एरिया को हम लोग कंसीडर करेंगे। देन स्टील वर्क और मेटल वर्क की बात करें तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उनको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बट मेजर बाय वेट करेंगे। केबल एंड उसके लिए हम लोग डायामीटर के थ्रू, रनिंग मीटर के थ्रू उसमें स्टेट करेंगे बट उसको वेट के थ्रू मेजर करेंगे। डक्ट वर्क के लिए हम लोग जो उसका सरफेस एरिया होता है वो हम स्क्वायर मीटर में करेंगे कि कितना फॉर डक्ट वर्क के लिए हमको मेटल रिक्वायर्ड है। देन स्टील रेनफोर्समेंट, ये ऑलरेडी मेंशन है 3.7.1 में, लेकिन हम इसको रनिंग मीटर में कंसीडर करते हैं। जो बोल्ट और अदर नट्स बहुत सारे लगते हैं इनको हम लोग केजी में मेजर करते हैं। देन रूफ कवरिंग की बात करें तो फर्स्टली जो मेटल और सीट टाइप में जितने भी रूफिंग होते हैं तो उसमें हम लोग थिकनेस स्टेट करते हैं, जो एरिया है वो हम स्क्वायर मीटर में नापते हैं फर्स्टली रूफ का। और इसमें बेसिकली मेन रीजन ये है कि हम लोग जो लैप्स होते हैं और साइड लैप उनको हम लोग कंसीडर मतलब मेजर नहीं करते हैं, लिखते और खाली ओनली मेंशन करते हैं बट उसको काउंट में गिनते नहीं है, लैप्स को हम लोग काउंटिंग नहीं गिनते हैं सीट उसमें। एंड अगर उस लैप पे कोई ज्वाइंटरी हुई है, ज्वाइंटिंग है, तो उसको हम मेंशन जरूर करते हैं। रिवेटिंग हुई है, कोई बोल्टिंग हुई है, वो मेंशन जरूर करते हैं। इवन जो हमारा रिज एरिया है, वैली एरिया है, ईव्स एरिया है, तो उन सबको हम लोग रनिंग मीटर में हम लोग, और उसका जो गिर्थ है फ्लैशिंग वो स्क्वायर मीटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। द सेम थिंग इज फॉलोइंग द एस्बेस्टस सीमेंट रूफिंग, एसी शीट रूफिंग। तो शेल डिस्क्राइब स्टेटिंग द थिकनेस, द सेम थिंग अगर हम कहीं पे भी वो कोई रिवल्ट बोल्ट मेंशन करते हैं ज्वेलरी, तो वो हमको मेंशन करना है। रिज एंड हिप्स को भी हम लोग रनिंग मीटर में लाइन हम लोग मेंशन करते हैं। रूफ टाइलिंग की बात करें तो जो टाइलिंग है उसका हमको पैटर्न, क्वालिटी, साइज, टेक्सचर सब चीज जो है वो हमको मेंशन करना होता है, लेइंग का वे, और इसमें मेंशन करना होता है सिंगल और डबल टाइलिंग स्टाइल सिस्टम। अगर दोनों टाइल्स अलग अलग डिजाइन की हैं फिटिंग के टाइम पे तो उन दोनों को अलग अलग मेंशन करना होता है। इसका रिज हैप वैल्यू शैल बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर। अगर उसको हम मोर्टार से जोड़ रहे हैं तो वो मोर्टार का क्या स्पेसिफिकेशन है, इट शुड बी मेंशन। द सेम थिंग इज मद्रास टेरेस रूफिंग। अगर मद्रास टेरेस की रूफिंग की बात करें तो उसमें यूज होने वाले प्लास्टर का पूरा स्पेसिफिकेशन हमको उसमें करना होता है। ओके, देन ब्रिक टाइल्स की कितनी लेयर्स हैं, उसकी थिकनेस क्या है, नंबर्स, ये हमको मेंशंस करना होता है मद्रास टेरेस में। देन पार्ट एंड सीलिंग एंड लाइनिंग। तो सीलिंग में बेसिकली इसको हम लोग स्क्वायर मीटर में कंसीडर करते हैं। सीलिंग में नॉट ओनली कि हम हार्ड सीलिंग की बात कर रहे हैं, सस्पेंडेड सीलिंग में भी किस टाइप की सीलिंग है, कैसी फिक्सिंग है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी जो है डिटेल क्या होने वाली, इट शुड बी मेंशन। ठीक है। देन इसके अलावा अगर हम कोई सर्कुलर कटिंग कर रहे हैं, कोई डिजाइन है, तो हम सर्कुलर कटिंग और उसमें लगने वाला जो वेस्ट है उसको भी मेजर करके रनिंग मीटर में भी मेंशन करना होता है। इसके अलावा अगर हम अपने उसमें कहीं पे इंसुलेशन बोर्ड्स और स्लैब कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उसको ये हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, उसकी थिकनेस को हम लोग स्टेट करेंगे, लिखेंगे। एंड इसके अलावा उसमें अगर कोई भी फिक्सिंग या ज्वाइनिंग के लिए मोर्टार यूज कर रहा है तो शुड बी डिस्क्राइब्ड, वो भी मेंशन होना चाहिए अगर कोई हॉलो ब्लॉक को छोड़ने के लिए। ओके, देन अब बात करते हैं फ्लोर फेंसेस की। तो फ्लोर फेंसेस के लिए जो है टाइल्स का जो मेंशन होता है कि वो ब्लॉक यूनिट कैसा है, क्या है, किस मटेरियल का है, उसका साइज क्या है, इन केस ऑफ अगर वो रेक्टेंगुलर नहीं है तो शेप क्या है उसका, नेचर ऑफ उसकी सरफेस फिनिश कैसी है मटेरियल की, लाइक ग्लेज्ड है, कैसा है, पॉलिश्ड है, रफ्ड है जो हम मटेरियल लगाने वाले हैं। देन उसकी बेडिंग क्या होगी,
अदर मेथड के साथ फिक्सिंग होने के लिए डिटेल। देन उस दो मटेरियल के बीच की जो ज्वाइंटिंग होती है, ग्राउटिंग, पॉइंटिंग, फिनिशिंग, वो क्या होगी। देन नेचर ऑफ बेस, लाइक उसको रूफिंग को करने के लिए, सॉरी फ्लोरिंग को करने के लिए आपको कंक्रीट का प्रेस चाहिए, स्क्रीटेड प्रेस चाहिए, या फिर कोई वुडन का फ्लोर चाहिए, तो इट शुड बी मेंशन। देन इसके अलावा जो डैडो स्पेस होता है उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, और स्कर्टिंग को रनिंग मीटर में। इसके अलावा स्पेशल टाइल जितनी भी होती हैं हम लोग जो यूज़ करते हैं बीच में, वो कहीं पे लगाने के लिए, डैडो, इन सब बीच में, इनको हम लोग रनिंग मीटर में और उनके अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप जो है वो मेंशन करते हैं। ट्रेड राइजर की बात करें तो इनको स्पेशली सेपरेटली अलग से स्क्वायर मीटर में, इवन लैंडिंग का जो भी है उसको इंक्लूड कर सकते हैं मेन आइटम में, जो लैंडिंग पे काम होता है। इसके अलावा अगर जो हम रबर शीट और इन सब फ्लोरिंग की बात करते हैं, लिनोलियम की, तो इसको भी हमको लैप एंड शीम, जो हमारा जो दो शीटों के बीच का लैप होता है, उनको इंक्लूड करते हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड बट जो लैप है और टाइप ऑफ शीम वो हम मेजर सेपरेटली नहीं करते हैं, ठीक है। देन शीट की जो फिनिशेस है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर दोनों जगह पे अप्लाई किया तो हम दोनों को अलग अलग काउंटिंग करते हैं, ना कि एक में। देन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, तो अगर हम प्लास्टरिंग की बात करें, इसको हम लोग स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। सो अगर उसकी हाइट ग्रेटर देन 10 मीटर है ग्राउंड से, तो हम प्लास्टर को 5 मीटर के आस्पेक्ट में सेपरेटली जो है वो करते हैं, हाइट में के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। बट अगर इंटीरियर के केस में है तो ऐसा नहीं करते हैं। एंड इसके अलावा जो भी हमारे फ्लोर्स हैं अगर वाइज है तो हम फ्लोर वाइज जो है प्लास्टर्स को कंसीडर करते हैं। ओके, अगर जो ओपनिंग है वो 3 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो हम जो है वो डिडक्शन करते हैं अपने प्लास्टर के क्वांटिटी में। बट जो उसका जैम वाला एरिया होता है, सॉफिट वाला एरिया होता है, उसको हम लोग मेजर करके ऐड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर जब सीलिंग में प्लास्टरिंग की बात करते हैं तो जो हमारा वॉल और पार्टीशंस वॉल्स होती हैं उनका जो प्लास्टरिंग थिकनेस उसको हम डिटेक्ट करके सीलिंग को डिजाइन करते हैं। बट अगर हमारी सीलिंग जो है आगे कॉर्निश या कोव्स या कुछ भी उसमें ऐड कर रहे हैं डेकोरेटिव एलिमेंट, तो हम उसके एरिया को उससे बाद में डिडक्ट जरूर करते हैं। ओके, सो पॉइंटिंग के केस में हम लोग जितनी भी टाइप की पॉइंटिंग होती हैं वॉल्स वो सबको अलग अलग जो है वो कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, और इसको जो हम जनरली कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर मीटर। ओके, सो व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, डिस्टेंपरिंग के लिए फर्स्टली वी आर मेंशनिंग कि व्हाइट वॉश, कलर वॉश, वो नॉशन उनकी जो इतनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वॉशेबल है, नॉन वॉशेबल है, वाटर प्रूफ है, नहीं है, चॉक एडेड है, लिंसन ऑयल क्या रिक्वायर्ड है, क्या है, सीमेंट स्लरी है, ये सब चीज मेंशन करते हैं। इसका जो एरिया है उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में कंसीडर करते हैं। इसके अलावा उसको हम उसमें नंबर ऑफ कोट्स इन ईच केस में हम मेंशन करते हैं। इसको जो हम मेजर करते हैं वॉलिंग, सीलिंग, वॉल, सीलिंग एंड स्लोपिंग रूफ में सेपरेटली जो है इसको मेजर करते हैं, ये नहीं कि कंबाइंडली करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। सो दिस इज माय लास्ट स्लाइड एंड दिस इज द रेफरेंसेस। अगर आपको कोई भी आईएस कोड डाउनलोड करना है नेट से ऑनलाइन, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, तो आपको वहां से 1 to 27 पार्ट आपको मिल सकते हैं। 70 नंबर पार्ट इज नॉट अवेलेबल फ्रीली। सो these are the references. This is my QR code, so you can just scan and please share to others. And I will share this presentation in my caption. Even I will share the IS codes, all IS code, and even last two IS code or NSP21 and others. So I will mention in my caption. You can download it, and please like my video and subscribe my channel.